Student, in this session we start the gastrulation, that the third stage of embryonic development. You know, in the first stage is morula. After zygote formation from the morula, second is called as blastula, and finally the third step is gastrula. So, gastrula formation in embryonic development is known as gastrulation. So, gastrulation is the term. So, in embryonic development, or you say that in initial embryonic development, the formation of gastrula is called gastrulation, okay. Same like blastulation, the formation of blastula is called blastulation. In that type, the formation of gastrula is known as gastrulation. You know, the first point, after fertilization from the zygote, then morula, then blastula and gastrula. This is the initial development of the embryo. Students, you know, this zygote is single cellular structure and single DNA, that is the diploid form, the DNA is the form, it is called as single cell. So, an organism developed with the help of single cell. Now, second step is morula. You know, 8 to 16 blastomere is called morula. After that, 32 blastomere stage is called blastula, and when it reach into 64 blastomere, then it is called gastrula. You know, in morula it is solid ball like structure, solid ball like structure, but in blastula it is hollow, round form structure. Why hollow? Because the trophoblast connect with the uterine wall, and the uterine wall to uterine liquid enter inside the trophoblast, and hollow structure form in the blastula. So, it is the hollow, and gastrula it is also hollow structure, You know, it is the initial development of the embryo. In the gastrulation, the main purpose of the gastrulation is develop the 3 derm, that is called embryonic derm. So, in the place of the gastrulation forms 3 embryonic derm. You know, if 3 embryonic derm is present, then it called as triploblastic or triploblastic organism. If 2 germ cell have to present, then it called the diploblastic. So, embryonic derm is 3 and 3 derm present in human being. So, human being is triploblastic. The derm is ectoderm, the outer embryonic derm is ectoderm, second is mesoderm, and third is endoderm. So, these 3 derms have to form in the case of the gastrulation. So, forms 3 embryonic derm in gastrulation stage. So, this stage is called as gastrula. Now, we explain which type of structure is formed in gastrula. अब देखो, इस gastrula को समझना होगा तो आप इस तरह से समझे कि ये यूट्रस का लेयर है, and in this layer enter the blastula stage. जब ये होता है उस समय ये इसके साथ contact में आएगा. You know, when it contact in that region, in that time found the outer layer is zona pellucida, that is zona pellucida is the main layer
and it present in that time. After that, the junction point of this region, zona pellucida have to remove, and when zona pellucida have to remove, in that time the trophoblast cell have contact in the uterine wall, and it's called the initiation और जंक्शन पॉइंट ऑफ द एम्ब्रियो। बस अभी जंक्शन पॉइंट हुआ है जो ब्लास्टुलेशन के द टाइम पे आप देखे थे। और आपको पता है कि इस समय अंदर की तरफ फ्लैट सेल्स फॉर्म हो रहे हैं, एंड द फ्लैट सेल्स इज कॉल्ड एज ट्रोपोब्लास्ट। ये सभी सेल जो होते हैं फ्लैट सेल में के फॉर्म में होते हैं। इट नेम इज ट्रोफोब्लास्ट। और इसमें कुछ राउंड फॉर्म में सेल होते हैं जिसको जनरली एक्टिवेटिक फॉर्म एम्ब्रियोनिक सेल या इसको एक्टिव साइट के सेल बोल सकते हो, और अपोजिट वेजिटल पोल होता है। ठीक है, अब देखो क्या होगा इसके बाद। जोना पेलुसिडा इसके ऊपर से रिमूव हो जाएगा और ये इसके अंदर एंटर हो जाएगा। दैट मीन्स दिस स्ट्रक्चर एंटर इनसाइड दिस यूटेरियन वॉल। यू नो इंटेरियर वॉल इज 3 पार्ट, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। टच करेगा एंडोमेट्रियम को, एंटर करेगा मायोमेट्रियम तक, और एंटर करने के टाइम पे ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट धीरे 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 जो भी ट्रोपोब्लास्ट है ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेंगे और ये एक रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये फोल्ड फ्लैट फॉर्म में आपको दिखाई नहीं देंगे। नाउ दिस स्ट्रक्चर इज ट्रोपोब्लास्ट। ये भी ट्रोपोब्लास्ट है, बट ये अब सॉलिड स्ट्रक्चर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब जो है ब्लास्टुला कंप्लीट हो चुका है। अब इसके अंदर ये इंटर कर चुके हैं, यानी अब ये यहाँ पर नहीं है, अब ये इसके अंदर है और इसके अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका है। और इसमें 2 टाइप के सेलुलर स्ट्रक्चर्स फॉर्म होंगे और इसमें एमनियन, कोरियन, यॉक सैक, एलेंटॉयस, कई सारे स्ट्रक्चर होंगे जो एम्ब्रियो को फॉर्म करेगा। स्टूडेंट, नाउ वी ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर इज ब्राइट फॉर्म एंड ब्रीफली शो। Suppose this is the gastrulation or gastrula stage, and which type of structure is formed in gastrula? इसको बड़े रूप में देखो। This structure is called as trophoblast because जोना पेलुसिडा ने इम्प्लांट करा दिया, जोना पेलुसिडा रिमूव हो गया, अब इसके ऊपर जोना पेलुसिडा नहीं है। अब ये जो फ्लैट फॉर्म में सेल थे वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं। नाउ द सेल नेम इज ट्रोफोब्लास्ट। शो डियर स्टूडेंट्स, इट्स नेम इज ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, अब क्या होगा, ये बीच में श्रिंक होंगे, लिक्विड अंदर आता जाएगा और श्रिंक होने के बाद ये इस साइड में किसी एक साइड के पास आकर के इस तरह के स्ट्रक्चर को फॉर्म करेंगे और कुछ ऐसे फ्लैट सेल यहाँ रहेंगे। बट कंफ्यूज मत हो जाना, दिस फ्लैट सेल इज नॉट द ट्रोफोब्लास्ट, दिस फ्लैट सेल इज डायरेक्टली फॉर्म इनटू द एम्ब्रियोनिक डम, और ये जो होता है एम्ब्रियोनिक डम को फॉर्म कर रहे हैं। इस तरह से इसमें आपको 2 एम्ब्रियोनिक डम दिखाई देंगे। 2 एम्ब्रियोनिक डम हैव टू फॉर्म इन दैट रीजन। नो डाउट इसमें न्यूक्लियस होगा सबके अंदर, तो न्यूक्लियस प्रेजेंट इन दिस रीजन। क्लियर? अब देखो, ये जो बच्चा है ये डेवलपिंग के टाइम पे इस तरह के स्ट्रक्चर को शो कर रहा है। द डेवलपिंग फॉर्म ऑफ एम्ब्रियो in initially known as morula, blastula, gastrula. After that they enter into fetus. Fetus means the developing form of embryo, not complete into the embryonic form but developing form of embryo, and that name is fetus. This is the fetus. ये छोटा सा बच्चा अभी बस इनिशियल स्टेट में बन रहा है और भविष्य में ये एक कंप्लीट बच्चे का रूप ले लेगा। इस समय ये बन रहा है, अभी बना नहीं है। ये बच्चा धीरे धीरे 90 डिग्री के एंगल पे फोल्ड होगा। 90 डिग्री के एंगल पे फोल्ड होने से क्या होगा कि जैसे मान लो ये है और इसके फोल्ड होगा इस तरह से, और 90 डिग्री के फोल्ड होकर ये नीचे की ओर आ जाएगा और ये ऊपर की ओर। फिर इस साइड से इनके लेग्स बनेंगे, इस साइड इनके हेड बनेंगे, यानी हेड नीचे की तरफ होगा और पैर ऊपर की तरफ होगा। जब एक बच्चा डेवलप होता है तो जब वो यूट्रस में रहता है, माँ के यूट्रस में, तो उस समय बच्चे का जो सिर होता है वो नीचे की तरफ होता है और पैर होता है ऊपर की तरफ। ये एक्यूरेट पोजीशन है, इसको सीधा कहते हैं। जरा सुनना ठीक से, ये सिर होगा नीचे की तरफ और पैर होगा ऊपर की तरफ, ये सीधा है। दैट मीन्स इट नॉर्मल कंडीशन। लेकिन मान लो बच्चा क्या होता है, थोड़ा सा चंचल होता है, जैसे ही इसकी एज बढ़ जाता है 5 मंथ, 6 मंथ, 7 मंथ, तो ये मूवमेंट करता है। प्लेसेंटा से जो कनेक्शन होता है उसके थ्रू ये मूवमेंट स्टार्ट करता है और कभी कभी बच्चा घूम जाता है ऐसे, और ये सिर हो जाता है ऊपर और पैर हो जाता है नीचे, जिसे आप नॉर्मल समझ रहे हो, सिर ऊपर पैर नीचे। ये कंडीशन उल्टा है,
यानी कभी कभी डॉक्टर्स कहते हैं कि ये बच्चा उल्टा हो गया, इन्वर्टेड हो गया, दैट मीन्स दिस टाइप ऑफ चाइल्ड इज नॉट द रियल कंडीशन, दिस द इन्वर्टेड कंडीशन व्हेन द हेड साइड अपर एंड लेग इन द लोअर पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज इन्वर्टेड चाइल्ड। ये नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल ये है लोअर पार्ट में हेड होगा, अपर पार्ट में इस साइड में लेग्स होगा, तो ये मूव करेगा। अभी ये बस बन रहा है, अभी गैस्ट्रुला के बाद जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है और स्टार्टिंग पॉइंट में 3 डर्म बनेंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि इन द केस ऑफ द गैस्ट्रुला फॉर्म द 3 डर्म, इक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म, ये तीनों डर्म बन रहे हैं। अब देखो एक एक करके, ये जो फ्लैट फॉर्म में जो सेल आप देख रहे हो, दिस सेल फॉर्म द इक्टोडर्म, ये इक्टोडर्म को फॉर्म करेगा। ये जो राउंड फॉर्म में सेल बन रहे हैं, इट फॉर्म इज कॉल्ड इंडोडर्म, ये इंडोडर्म को फॉर्म करेंगे। सो 2 डर्म इज इनिशियली फॉर्म, दैट मीन्स इनिशियल स्टेट इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म इज टू फॉर्म, नॉट द मेसोडर्म। मैं नाम लेता हूं इक्टो, मेसो, इंडो, बट मेसोडर्म इज नॉट फॉर्म इन दैट टाइम, अभी नहीं बना है। बट ग्रेजुअली एंड ग्रेजुअली मेसोडर्म स्टार्ट टू फॉर्मेशन। अब मेसोडर्म जो बनेगा इसमें डॉटेड फॉर्म में बनेगा, अभी कंप्लीट नहीं है, इसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनेंगे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा, बट ये सिंपल स्ट्रक्चर के फॉर्म में अभी बनेंगे और ये डॉटेड फॉर्म में होगा। अभी ये ट्रोपोब्लास्ट के ठीक लोअर पार्ट में, और ये जो रीजन देख रहे हो इसके पास इस तरह के डॉटेड फॉर्म में होंगे, और ये डॉटेड फॉर्म में स्ट्रक्चर्स को बनाएंगे, ये बच्चे के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा और ये मेसोडर्म को बनाएगा। मेसोडर्म को अकेला कोई नहीं बना सकता, 2 स्ट्रक्चर मेसोडर्म को पार्टिसिपेट कंबाइंड फॉर्म में मिलकर बनाएंगे। इसका नाम है सोमेटो फ्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक membrane, that means just lower part of the trophoblast, because this round form is called trophoblast, just lower part of the trophoblast is called as somatopleuric extra embryonic membrane, its name extra, and somatopleuric somatic part have to participate, so it's called somatopleuric extra embryonic membrane, and the surrounding region of this layer, जो second layer आप देख रहे हो इसका नाम है splanchnopluric, splanchnopluric extra embryonic membrane, and somatopleuric extra embryonic membrane और splanchnopluric extra embryonic membrane combinedly form the mesoderm। इन दोनों के मिलने से मेसोडर्म बनेंगे, मेसोडर्म का फॉर्मेशन होगा। That means when somatopleuric extra embryonic membrane and splanchnopluric extra embryonic membrane have to participate, in that time mesoderm have to form। So mesoderm का formation जो होगा ये 3rd फॉर्म में होगा। पहला होगा इक्टो इंडो का, या इक्टो का पहले फिर इंडो का, इसके लगभग 7 होते हैं इसलिए स्लाइट अमाउंट में सेकेंडो का अंतर होता है, इसलिए इक्टो इंडो, और इसके बाद होता है मेसो। एंड मेसोडर्म हैव टू फॉर्म इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द सोमेटोप्लेuric extra membrane and splanchnopluric extra membrane, when this membrane have to combine then form the mesoderm। क्लियर हो गया स्टूडेंट, 3 डर्म बन गए। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इस साइड में, दिस स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड एज एमनियोटिक कैविटी, एमनियोटिक कैविटी, और इसमें जो ये मेम्ब्रेन देख रहे हो इट्स नेम इज एमनियोटिक मेम्ब्रेन, एमनियोटिक मेम्ब्रेन। और आपको मैंने कहा था इन द टाइम ऑफ द ब्लास्टुला द यूट्रियन लिक्विड हैव टू एंटर थ्रू द ट्रोपोब्लास्ट, इसके थ्रू अंदर आते जाएंगे और वो जो लिक्विड होगा वो इसके अंदर डिपॉजिट होगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लिक्विड। ये लिक्विड जब तक बना रहेगा बच्चे का डेवलपमेंट यूट्रस के अंदर बहुत अच्छी तरह से होगा, जिसको स्टेप बाय स्टेप आप समझोगे, बट अभी बस नाम याद रखो, इट्स नेम इज एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड। तो 3 नाम एक जैसा ही है, केवल उसके अकॉर्डिंग, उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नाम बदल गए। इट्स नेम एमनियोटिक फ्लूइड because fluid have to present and it is the uterine fluid basically। It's amniotic cavity, cavity के अंदर fluid है, and this membrane is called as amniotic membrane। Now most important structure that is called as placenta। Placenta connect between the embryo and mother, and embryo and mother, the connection is developed with the help of placenta, and placenta form in that time because after gastrulation
start to formation of the placenta, and in that time this type of ribbon form or round form structure is appear on the upper side of this amniotic membrane, and this is called as amnion. because देखो amniotic membrane है तो नाम भी उससे मिलता जुलता है, इट्स नेम इज एमनियन। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस स्ट्रक्चर पार्टिसिपेट टू प्लेसेंटा फॉर्मेशन। एंड इसके ठीक नीचे इस साइड पे थोड़ा सा लोअर पोजीशन पे ये जो ट्रोपो स्टूडेंट्स इन केस ऑफ द गैस्ट्रुलेशन फाउंड इम्प्लांटेशन एंड क्लीवेज प्रेजेंट। इम्प्लांटेशन क्लीवेज दोनों इसमें होगा। अब देखो ये जो इस तरह से इम्प्लांट होगा, इम्प्लांट होने के बाद इसके ऊपर यानी ट्रोपोब्लास्ट के ऊपर एक लाइनिंग बनेंगे। दिस लाइनिंग इज कॉल्ड एज कोरियोनिक विलाई, एंड कोरियोनिक विलाई इज फॉर्म विद द हेल्प ऑफ मैटरनल and blood tissue, blood tissue and some part of the embryonic tissue। तो embryonic tissue and ये जो maternal tissue है दोनों पार्टिसिपेट करेंगे और कोरियोनिक विलाई को फॉर्म करेंगे, और ये विलाई फिंगर लाइक पोजीशन होते हैं, फिंगर लाइक पोजीशन इसके ऊपर फॉर्म करेगा। दैट मीन्स इस जगह पे अगर आप देखोगे तो इस तरह से कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको दिखाई देंगे। दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज फॉर्म इन द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एंड दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड एज generally chorionic villi. Its name is chorionic villi, and chorionic villi is importantly present in that region। ये कनेक्शन बनाता है। अब जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो ह्यूमन बीइंग में जैसे मान लो बच्चों ये मैटरनल टिश्यू है, तो 1 2 3 लेयर मान लो मैटरनल टिश्यू में यूट्रस के पास, ठीक है, और ये एम्ब्रियोनिक पार्ट है, एम्ब्रियोनिक 1 2 3 मान लो, तो मान लो ये 3 जो है ये प्लेसेंटल एम्ब्रियोनिक पार्ट है और ये प्लेसेंटल मैटरनल पार्ट है, दोनों मिलकर प्लेसेंटा को बनाएगा। दैट मीन्स व्हेन द मैटरनल पार्ट एंड एम्ब्रियोनिक पार्ट बोथ आर पार्टिसिपेट देन फॉर्म द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा बनेगा तभी वो जाकर के कनेक्शन रहेंगे। अब जैसे इसमें मान लो किसी एनिमल की बात करता हूँ, सिंपल ऐसे टच करता है, सिंपल ऐसे दिख रहा होगा आपको, ऐसे एक लेयर टच कर रहा है, तो ये जो होगा जब प्रेगनेंसी होगी और डिलीवरी होगी तो ये बहुत इजीली अलग हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरह से ब्लीडिंग भी कम होगा। बहुत सारे एनिमल में ऐसे होते हैं, किसी में 2 लेयर मैटरनल 2 लेयर एम्ब्रियोनिक दोनों जुड़ते हैं, तो इस तरह से जुड़ते हैं, तो थोड़ा जंक्शन टाइट होता है और ये बच्चे की डिलीवरी के समय में थोड़ा सा ब्लीडिंग होता है, यहाँ भी पेन होता है हल्का सा। बट ह्यूमन में क्या होता है, 3 मैटरनल एंड 3 एम्ब्रियोनिक डम इस तरह से पार्टिसिपेट करेंगे और ऐसे जुड़ जाएंगे, ऐसे। दैट मीन जो प्लेसेंटा इसमें बन रहा है कोरियोनिक विलाई, ये इस तरह से जुड़ जाएंगे 3, और जब ये ऐसे जुड़ेंगे तो बहुत टाइट बॉन्डिंग होगा, और जब ये टाइट बॉन्डिंग होगा तो इजीली अलग होगा नहीं, ये होना चाहिए। ऐसा अगर हुआ तो ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट अच्छी तरह से होगा, और जब बच्चे का डिलीवरी का टाइम आएगा उस समय मैटरनल एब्डोमिनल पेन स्टार्ट होगा, जबरदस्त पेन होगा, और पेन के बाद ये एक दूसरे से रिलैक्सिंग हार्मोन और ऑक्सीटोसिन के कारण ये मूवमेंट करेंगे और ये अलग होना चाहेगा, और ये इस तरह से अलग हो जाएगा। यूट्रस के पार्ट अंदर रहेंगे, प्लेसेंटा अलग हो जाएगा, पहले बच्चा जन्म लेगा फिर प्लेसेंटा उससे अलग हो जाएगा, यूट्रस अलग नहीं होगा, यूट्रस अंदर ही रह जाएगा और फीमेल हेल्दी कंडीशन में रहेगा। इट इज नॉर्मल डिलीवरी, बट ब्लीडिंग इसमें होगा। लेकिन किसी एनिमल में क्या होता है कि ये जो यूट्रस होता है ऐसा है, और ये जो प्लेसेंटल वाल है ये इसके अंदर चला गया, ऐसा, ये और टाइट बॉन्डिंग है। ये इतना टाइट बॉन्डिंग अगर हो जाता है इस कोरियोनिक विलाई के रीजन पे, तो ये क्या होता है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो यूट्रस को लेकर ही बाहर आता है। Suppose when uterus and embryonic placental part both have to remove in the time of the delivery of the child, it is very critical और फीमेल की डेथ हो जाता है। बट ऐसा अच्छी बात है कि ह्यूमन में नहीं होता है, ऐसा होता है रैट में। जो फीमेल रैट होती हैं उनमें क्या होता है कि ऐसा कंडीशन होता है, इसलिए रैट्स वगैरह जो है अपने बच्चे को जन्म देती हैं तो वो बहुत इनिशियल स्टेट में, जैसे वो बच्चा 15 दिन का हो गया, प्रेगनेंसी पूरी हो गई, तो वो 15 दिन बाद अपने बच्चे को डिलीवर कर देती है, ताकि 15 दिन बाद ये लूज होता है और ये अलग हो जाता है। उस समय ये यूट्रस अलग नहीं होता है। अगर मान लो कि ये 15 दिन की जगह 40 दिन 30 दिन ऐसा हो जाए, क्योंकि इसके 60 डेज होते हैं पूरे डेवलपिंग फॉर्म को, इतने टाइम लग जाते हैं, तो ये यूट्रस को लेकर अलग हो जाएगा और फीमेल की डेथ हो जाती है। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक है, और ये जो डेवलपमेंट प्रोसेस है इसका जो है डेवलपमेंट होना, इसमें कोरियोनिक विलाई का बनना, ट्रोपोब्लास्ट के ऊपर में कोरियोनिक विलाई का बनना, कोरियोनिक विलाई को बनाने में मैटरनल टिश्यू जैसे कि यूट्रियन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड वो पार्टिसिपेट करना, एम्ब्रियोनिक के टिश्यू के पार्टिसिपेट करना, ये सभी एक अलग सा प्लेसेंटल टाइप
है उसमें मैं आपको बताऊंगा और कैसे कैसे प्लेसेंटा होते हैं, क्या क्या नाम है, उन सब के बारे में अलग से मैं क्लासेस में डिस्क्राइब कर दूंगा। बट अभी मैं इसमें डिस्क्राइब कर रहा हूं कि मोरूला ब्लास्टुला के बाद गैस्ट्रुला बन रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैस्ट्रुला? गैस्ट्रुला मीन्स व्हेन द 64 ब्लास्टोमेर स्टेज इज फॉर्म दैट इट कॉल्ड द गैस्ट्रुला, एंड गैस्ट्रुला फॉर्मेशन इज नोन एज गैस्ट्रुलेशन। एंड इसमें 3 इम्ब्रियोनिक डर्म बनेंगे, इक्टोडर्म, मेसोडर्म, इनोडर्म। व्हेन द 3 डर्म हैव टू पार्टिसिपेट इन द फॉर्म, in that time this type of structure is to form. This structure is known as gastrula. यानी अब तक आपने मोरूला देख लिया, ब्लास्टुला देख लिया, ये गैस्ट्रुला है. This is the gastrula, and this gastrula is present only 64 blastomere. When 64 blastomere convert to the next stage, then it is the gastrulation complete and start to the next division. अब importantly कुछ बातों को समझ लो. In the time of the morula stage, the division with the help of karyoplasmic index, because in that time centriole not present, so karyoplasmic index participate into cell division. You know cell division is mitosis type, तो इसमें माइटोसिस सेल डिवीजन होगा और माइटोसिस सेल डिवीजन को कराएगा कौन? कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, बिकॉज एवरी सेल डिवीजन नीड some special categorized and controlling point that is called centriole or karyoplasmic index. Karyoplasmic index is maximum in the embryonic cell, so karyoplasmic index control the cell division. In general, centriole participate and control the cell division, but here centriole not present, only karyoplasmic index present and maximum amount of the karyoplasmic index present. So in the division of the morula, the mitosis division present and form the many blastomere 8 to 16, and that is controlled with the help of karyoplasmic index. Same like here blastula, karyoplasmic index present and mitosis complete. Here also karyoplasmic index present and cell division is mitosis. But after gastrula, the karyoplasmic index is not participate. After gastrula, centriole have to form, because when this type of structure have to arise and form, in the time the body cellular part have to ecto, meso and indo in that categorized characteristic feature to develop the formation of the centriole, and centriole participate into the next cell division. So after gastrulation, when gastrulation have to complete, then centriole participate cell division. It's most important, you have to remember. So in the initial stage of the embryonic development, that is the zygote, morula, blastula, gastrula, and you know zygote have not started the cell division with a single cell, so karyoplasmic index and centriole not participate here, but morula, blastula, gastrula, karyoplasmic index have to present and participate. लेकिन जैसे ही कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स और बॉडी सेलुलर इंडेक्स एक जैसे हो जाते हैं, इक्वल, क्योंकि ये तो शुरू में ज़्यादा है, फिर ये भी ज़्यादा है, फिर ये धीरे धीरे कम हो जाता है, एंड व्हेन द बॉडी कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो सोमेटिक सेल में हमारे होते हैं एंड इसके अंदर जो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स है जब इक्वल हो जाते हैं तो इसका डिवीजन अब ये नहीं कर पाता है, फिर सोमेटिक सेल बन जाते हैं और इसमें सोमेटिक सेल के अंदर सेंट्रियोल्स होते हैं, एंड दिस सेंट्रियोल हैव टू ऑटोमेटिकली डिवीजन को कंट्रोल करते हैं. अब देखो ये डिवीजन जो होंगे ये थोड़ा स्लो होगा, ये भी स्लो होगा, ये भी स्लो होगा, क्योंकि इस समय ये बन रहे होते हैं. इसको बनते बनते करीब 7 डे का टाइम लग जाता है, एंड एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन 7 डे में इनिशियली होता है, एंड 15 डे लगभग लग जाते हैं एम्ब्रियो के इम्प्लांट होने में, और 7 to 15 डेज में सेंट्रियोल बनना स्टार्ट हो जाता है, एंड 7 to 15 डेज के टाइम पे यानी गैस्ट्रुलेशन के ठीक बाद सारा का सारा सेल डिवीजन अब नॉर्मल कंडीशन में होता है. आप तो जानते हो माइटोसिस सेल डिवीजन कंप्लीट इन 24 आवर्स, और 24 घंटे में जब पूरा होता है तो उसको पूरा करने में अब ये काम करेंगे. इनको हो सकता है कि समय कम लग रहा हो, इनको समय अब नॉर्मल वे में लगेंगे और ये अपने वर्क को बहुत अच्छी तरह से करेंगे, तो ये याद रखिएगा. तो दिस इज कॉल्ड एज द कोरियोनिक विलाई, ये बन चुके हैं, एंड दिस इज द एमनियन, एमनियोटिक कैविटी, एमनियोनिक पार्ट एंड कोरियन. ठीक है, अब देखो इसी को मैं एक डायग्रामेटिक पार्ट के थ्रू एम्ब्रियो के थोड़े स्टेज एडवांस में मैं आपको दिखा रहा हूँ. दिस इज द एडवांस स्ट्रक्चर एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. ये एम्ब्रियोनिक
इम्प्लांटेशन, पहले इम्प्लांटेशन की बात कर लेते हैं, एंड फॉर्म फीटस, और ये फीटस बन रहे हैं। आफ्टर गैस्ट्रुला ये डेवलपमेंट हो रहा है, तो आफ्टर गैस्ट्रुलेशन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड प्लेसेंटा फॉर्मेशन, एंड प्लेसेंटा formation. That means after gastrulation this type of structure have to happen and form the placenta. Placenta बनेगा। अब देखो वो डायग्राम यहाँ पर है, यू नो यूट्रस इज अ पेयर शेप्ड स्ट्रक्चर, सो ये छत जैसा है, तो इसके मिडिल पॉइंट में एम्ब्रियो का इम्प्लांट हो सकता है। दिस इज द एनसीईआरटी डायग्राम एंड इसके मिडिल पॉइंट है, इसमें एम्ब्रियो का ये इम्प्लांटेशन हो रहा है। ओके, एम्ब्रियो जब इम्प्लांट हो रहा है, अभी ये एम्ब्रियो नहीं है, अभी ये जो है बनेगा, इसको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पार्ट बोलते हैं। इट इज द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज। सो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज जो होता है, ये जब डेवलपमेंट पूरा कर लेगा तो इस समय इसको फीटस बोलेंगे। सो ये इनिशियल स्टेट है और ये फीटस के फॉर्म में बनेगा। सो फीटस है अभी, और ये जो है इस समय इस फॉर्म में दिखाया गया है, ये भी डेवलपिंग स्टेज में है। अभी ये राउंड फॉर्म में घूमना और बाकी सारे कंडीशन को पूरा नहीं किया, अभी करेगा धीरे धीरे 1 बाय 1, बट ये अभी डेवलपिंग स्टेज में बन चुके हैं। अब देखो एक एक करके, जैसे ये यूट्रस का वाल है एंड इस वाल पे ये जो है एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, तो यूट्रस के वाल जो होते हैं इसमें यूटेरियन पार्टिसिपेशन पॉइंट होते हैं, यानी मैटरनल टिश्यू होते हैं या यूटेरियन टिश्यू होते हैं। तो यूटेरियन टिश्यू या आप इसको मैटरनल टिश्यू कह सकते हैं। यूटेरियन टिश्यू और मैटरनल टिश्यू यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैटरनल टिश्यू यूटेरियन टिश्यू के साथ इसमें एम्ब्रियोनिक टिश्यू भी पार्टिसिपेट कर रहा है। एम्ब्रियोनिक टिश्यू, एम्ब्रियोनिक जो टिश्यू है जो फीटस के रूप में है वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यूटेरियन टिश्यू यानी मैटरनल पार्ट का, यूट्रस का पार्ट, और जो एम्ब्रियोनिक टिश्यू है, दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो रहे हैं और दोनों एक दूसरे में समाहित हो रहे हैं, जैसे एक दूसरे के ऊपर समा जा रहे हैं। तो इस तरह की कंडीशन को इंटरडिटेशन बोलते हैं, इंटरडिजिटेशन। दैट मीन्स व्हेन the maternal or uterine tissue and embryonic tissue have to recombine and form the structure of the placenta and participate into embryonic development, then it called as interdigitation. So interdigitation हो रहा है, दोनों एक दूसरे में सम्मिलित हो रहे हैं, दोनों को चाहिए, दोनों ही पार्टिसिपेट करेंगे, दोनों के मिलने से ही एम्ब्रियो के प्लेसेंटा और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जब ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ट्रोपोब्लास्ट के ऊपर एक फिंगर लाइक पोजिशन बन रहे हैं, एंड यू नो the finger like position is known as chorionic villi. Sometimes it's called as placental villi also. So chorionic villi and placental villi, you know the upper part of the trophoblast form finger like projection, and that finger like projection form inside uterine wall and uterine maternal tissue like the blood tissue, blood capillary and different type of part also participate here and form finger like position. यानी finger like position बन रहे हैं ट्रोपोब्लास्ट के ऊपर। ये ट्रोपोब्लास्ट है, इसके ऊपर फिंगर लाइक पोजीशन बन रहे हैं। इस ट्रोपोब्लास्ट के ऊपर फिंगर लाइक पोजीशन को बनाने में मैटरनल टिश्यू पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये जो ट्रोपोब्लास्ट है ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का पार्ट है, ये भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो दोनों मिलजुल करके इसमें इस तरह के कोरियोनिक विलाई को फॉर्म कर रहे हैं, और इसको फॉर्म करते समय इंटरडिजिटेशन हो रहा है, दोनों इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब ध्यान दो, जब ये शुरू में बनते हैं तो ये जो कोरियोनिक विलाई जिसको हम देख रहे हैं विलाई लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बॉन्डिंग, ताकि बच्चा अलग ना हो जाए। आपने बहुत सारे फीमेल में सुना होगा कि प्रेगनेंसी तो हो गया इनिशियल, लेकिन बच्चा जो है यूट्रस में बहुत लंबे समय तक रहा नहीं, वो मिसगैज हो गया, उस यूट्रस से अलग हो गया। ऐसा क्यों हुआ? जैसे कि पेड़ पौधों में होता है कि फल तो बने, बट इनिशियल फल बनने के बाद वो वहां से गिर गया। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स के कारण वो डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, या और कोई फैक्टर हो सकता है, वाटर की डेफिशिएंसी हो सकती है, एटमॉस्फेरिक प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसे ही ह्यूमन फीमेल में जब भी बच्चे का इम्प्लांटेशन हो रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इम्प्लांटेशन के समय अगर ये किसी तरह से अपने को यूट्रस के साथ कंबाइन नहीं कर सके तो ये गिर जाएगा, ये नहीं रहेगा यहाँ। तो इसको डेवलपमेंट होना है, तो इस समय यहाँ पर छोटे छोटे विलाई बन रहे हैं, कोरियोनिक विलाई। इनिशियल में ये पूरा किसी भी तरीके से इसके अंदर इम्प्लांट होना चाहता है, तो इनिशियल स्टेट में ये कोरियोनिक विलाई पूरे में होगा, यहाँ पूरे में।
और पूरे के ऊपर ये कोरोनिक विलाई बन रहे हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है सर? ये पूरा स्ट्रक्चर है एमनियोटिक फ्लूइड का, और इसे हम एमनियोटिक मेम्ब्रेन कहते हैं, अभी मैंने बताया था। तो ये एमनियोटिक मेम्ब्रेन का पार्ट है, इसी के अंदर में एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ है जो ट्रोपोब्लास्ट के थ्रू अंदर आ चुका है। और ये फ्लूइड जैसे जैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे ये आता जाएगा और उसके कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। यानी बच्चा जो इस यूट्रस के अंदर डेवलप कर रहा है उसके अच्छी तरह से डेवलपमेंट के लिए लिक्विड का होना जरूरी है, एंड दैट लिक्विड नेम इज एमनियोटिक फ्लूइड। यानी सोचो एक प्लास्टिक का पैकेट है, ट्रांसपेरेंट पैकेट है, उस पैकेट के अंदर एक छोटा सा बच्चा डेवलप हो रहा है, लेकिन डेवलप किसके अंदर हो रहा है? चारों तरफ लिक्विड है, उस लिक्विड पार्ट के अंदर वो बच्चा डेवलप हो रहा है। कितनी अच्छी बात है, ये सारा लिक्विड से घिरा हुआ है, तो इसको बाहर से जर्क से बचा रहा है, इसको बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्शन से बचा रहा है, इसको किसी भी तरह के न्यूट्रिशन की कमी नहीं होने दे रहा है। इस समय इस बच्चे के पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा, जैसे ये थोड़ा सा 5 महीने तक का डेवलपमेंट पूरा कर लेता है तो पूरे शरीर में इसके बाल होते हैं, हेयर्स ग्रो कर जाते हैं, और फिर बाद में धीरे धीरे 9 मंथ आते आते इनके शरीर से हेयर रिमूव हो जाते हैं और सिर्फ हेड रीजन पे हल्का सा हेयर रहता है, वो रियल हेयर्स होते हैं, और बाकी जो ग्रोइंग हेयर है वो रिमूव हो जाते हैं। तो इतना कुछ हो रहा है। तो ये लिक्विड बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो कि ये बच्चा अभी बन रहा है, अभी 4-5 महीने का डेवलपमेंट पूरा हो गया और किसी कारण से ये एमनियोटिक मेम्ब्रेन फट गया, तो लिक्विड तो आउट हो जाएगा, तो ये बच्चा फिर यहाँ पर नहीं रह सकता, इसकी डेथ हो जाएगा। लेकिन आजकल मॉडर्न साइंस ने इसका भी तोड़ निकाला है। इन द केस ऑफ द मॉडर्न साइंस, इफ दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इज हैपन इन दैट टाइम, विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल एमनियोटिक फ्लूइड इम्प्लांट इन दैट रीजन एंड ब्लॉक द कोलेप्स पार्ट को ब्लॉक कर देते हैं, और ये सारा इंस्ट्रूमेंट के कैपेसिटी से हो रहा है, और बच्चे को अगले फिर 4 महीने का है तो 5 महीना और चाहिए ग्रोथ होने के लिए, तो 9 मंथ पूरा चाहिए, तो 9 मंथ तक ये अपने आप को मेंटेन करा लेता है। ऐसा भी हो रहा है आजकल। अच्छी बात है, जैसे जैसे मेडिकल साइंस आगे बढ़ रहे हैं इस तरह से बच्चे के जो बचाने के चांसेस है वो बहुत आगे तक जा रहे हैं। अब देखो एमनियोटिक फ्लूइड बन गया एमनियोटिक मेम्ब्रेन के ऊपर, अब ये सारे के सारे कोरियोनिक विलाई बन चुके हैं, लेकिन जैसे जैसे इसका डेवलपमेंट होगा अब लगेगा इनको कि हाँ इसके इम्प्लांटेशन हो चुका है। इन द टाइम द एक्स्ट्रा क्रोनिक विलाई जो कि एमनियोटिक मेम्ब्रेन के ऊपर है वो रिमूव हो जाएगा। सो एक्स्ट्रा क्रोनिक विलाई have to remove, and only in the region or junction point of the uterus and placental part, only in that region found chorionic villi। इसका मतलब जब ये बच्चा पूरी तरह से डेवलप होने को लगेगा, इम्प्लांटेशन हो चुका होगा, इन द टाइम द आउटर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एमनियोटिक मेम्ब्रेन एंड देयर कोरियोनिक विलाई हैव टू रिमूव, एंड ओनली जंक्शन पॉइंट इन दैट रीजन कोरियोनिक विलाई हैव टू प्रेजेंट। क्लियर? और ये कोरियोनिक विलाई इसको बनाए रखने में सपोर्ट करेगा। अभी मैंने बताया था मैटरनल टिश्यू, प्लेसेंटल टिश्यू, एम्ब्रियोनिक टिश्यू, ये दोनों पार्टिसिपेट करेंगे और पार्टिसिपेट करके इसको फॉर्म कर देंगे, तो बहुत अच्छा जंक्शन बनेगा। और ह्यूमन में 3 जंक्शंस होते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब देखो इसके बाद इसमें एक बच्चे का जो डेवलपमेंट हो रहा है, इस डेवलपमेंट में माँ और बच्चे के बीच में जो कनेक्शन होता है उसमें कनेक्शन पॉइंट को ट्यूब बोलते हैं, एंड इस ट्यूब का नाम है प्लेसेंटा। हिंदी में इसे नाल भी कहते हैं, बट इन जनरल इट नेम इज प्लेसेंटा, इट रियल नेम इज प्लेसेंटा, बायोलॉजिकल नेम इज प्लेसेंटा। ये क्या है? जैसे बच्चों ये यूट्रस है, सपोज दिस इज द यूट्रस एंड दिस इज द प्लेसेंटा, दिस इज द प्लेसेंटा, एंड ये बच्चा इस तरह से आएगा और इसके सिर नीचे की ओर और ये पैर ऊपर की ओर बनने स्टार्ट होंगे, और इसको चारों तरफ से एमनियोटिक मेम्ब्रेन घेर के रखेगा, एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होगा, एंड दिस नेम इज प्लेसेंटा। इसी का नाम है प्लेसेंटा, यानी मैटरनल एंड एम्ब्रियोनिक बोथ हैव टू पार्टिसिपेट एंड फॉर्म द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा बन गया। प्लेसेंटा जो होता है बच्चों, ये क्या है एक्चुअल में? एक तार जैसा है, इलेक्ट्रिक तार। इसमें बाहर में एक कवर होता है और इसके अंदर देखोगे तो इसमें वायर होते हैं बहुत सारे, स्टील के या पीतल के। इस वायर को आप अंदर के पॉइंट मान लो और बाहर का मेम्ब्रेन मान लो, और दोनों को कंबाइंड फॉर्म में प्लेसेंटा कहते हैं। इसे वायर कहते हैं, तार कहते हैं, वैसे ही इसमें क्या होता है बच्चों, ये जो प्लेसेंटा है इसमें बाहर में एक मेम्ब्रेन होता है, इट नेम इज प्लेसेंटल मेम्ब्रेन, प्लेसेंटल मेम्ब्रेन या आउटर मेम्ब्रेन भी कह सकते हो। तो प्लेसेंटा को एक मेम्ब्रेन ने घेर रखा है। क्लियर? बट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस मेम्ब्रेन के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है जिस नेम इज अम्बिलिकल कॉर्ड। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो अंदर है, इट नेम इज अम्बिलिकल कॉर्ड।
एन अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्ट इन द नेवल रीजन ऑफ द चाइल्ड एम्ब्रियो, जो भी हो रहा है उसके नेवल रीजन से कनेक्ट होगा। और ये जो मैटरनल न्यूट्रिशन होगा ये इसी के थ्रू इस बच्चे को मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। एवरीथिंग हैव टू सप्लाई विद द हेल्प ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड एंड यू से दैट प्लेसेंटा, बिकॉज अम्बिलिकल कॉर्ड प्लेसेंटा के अंदर ही है, सो प्लेसेंटा का पार्ट है। और ये जो बच्चा है इसमें जो इसका फीकल मैटर होगा, यूरिन होगा, ऑल थिंग हैव टू एक्सक्रीट इन दैट रीजन, और इसी से होता हुआ इस रीजन पे आ जाएगा और मैटरनल पार्ट में इसे रिमूव कर देंगे। और इस तरह की कंडीशन इसमें चलता रहता है और ये जो होता है प्लेसेंटा को फॉर्म करता है। सो प्लेसेंटा फॉर्म विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटल मेम्ब्रेन एंड अम्बिलिकल कॉर्ड, ये दोनों चाहिए तब जाकर प्लेसेंटा बनते हैं। तो देखो ये वही बात हो गई, ऊपर का तार का कवर प्लेसेंटल मेम्ब्रेन और बीच का पार जिसको मैं वायर कह रहा था, स्टील का, तांबे का या किसी भी पार्ट का, तो वो है आपका अम्बिलिकल कॉर्ड एंड बोथ हैव टू कंबाइन फ्रॉम द प्लेसेंटा। अब देखो ये बच्चा है, इसके अंदर जो मैटरनल टिश्यू एंड एम्ब्रियोनिक टिश्यू को कनेक्ट कर रहा है इट नेम इज अम्बिलिकल कॉर्ड विथ वैसल्स। You know vessels means blood vessels, that means many type of the blood vessels have to present and that name is umbilical cord। तो यही वो umbilical cord है, क्लियर हो गया आपको। और इसके बाहर जो है वो प्लेसेंटल मेम्ब्रेन है एंड प्लेसेंटल मेम्ब्रेन एंड अम्बिलिकल कॉर्ड कंबाइंडली फॉर्म द प्लेसेंटा, इसी से बाद में प्लेसेंटा बनेगा। सो प्लेसेंटा को बना कौन रहा है, तो एक मेम्ब्रेन है सर जिसका नाम है प्लेसेंटल मेम्ब्रेन और दूसरा है अम्बिलिकल कॉर्ड, बोथ हैव टू कंबाइन फ्रॉम द प्लेसेंटा। अब देखो इस बच्चे के डेवलपमेंट के टाइम पे यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इट नेम इज यॉक सैक। जैसे अंडे के अंदर पीला सा होता है लिक्विड, इट नोन एज यॉक, सेम यॉक, it's a proteinous part and this yolk present and connect with the part of the placenta, and in initial embryonic development of human child this yolk sac have to present and that yolk provide nutrition to the initial development of the embryo in human। ये मॉडर्न रिसर्च में पता चला है, पुराने बुक अगर पढ़ोगे आप तो यॉक सैक का कहीं नाम नहीं मिलेगा, यॉक सैक नॉट प्रेजेंट ऐसा कहते हैं एंड ह्यूमन ओवम इज एलेस्टल। बट ये थ्योरी चेंज हो चुका है, ये थ्योरी अब कहता है कि नहीं यॉक होता है। सो ह्यूमन फीमेल के जो ओवम होते हैं इट्स द माइक्रोलेस्थल और ओवम से बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है। इन द टाइम दिस माइक्रोलेस्थल पार्टिसिपेट टू द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन इनिशियल स्टेट और उसके बाद ये डिजेनरेट हो जाएगा और डिजेनरेट होने के बाद में प्लेसेंटा वर्क करेगा। मैटरनल एंड एम्ब्रियोनिक कनेक्शन में प्लेसेंटा का जो वर्क होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा और ये बच्चे के होल्ड करने में और साथ ही साथ न्यूट्रिशन देने में, इसके एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट को मैटरनल बॉडी में छोड़ने में, इन सब में ये पार्टिसिपेट करेगा। तो इस तरह से आपने इस डायग्राम के थ्रू ये देखा कि गैस्ट्रुला के बाद किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है एंड इसमें कैविटी ऑफ यूट्रस, जिसे आप जानते हो यूट्रस का कैविटी हो गया। और एक बात मैंने आपको बताया था कि ये जो पॉइंट्स होते हैं, ये पॉइंट्स जो होते हैं प्लग ऑफ म्यूकस इन सर्विक्स, और आपको मैंने बताया था, याद होगा आप लोगों को कि यहाँ पर आर्बर, वाइटी, सर्विक्स और यूटेरी होता है। सर्विक्स बोल देते हैं, बहुत सारी किताब यूटेरी बोलते हैं। तो ये जो सर्विक्स ऑफ यूटेरी जो होते हैं, ये आर्बोवाइटी, ये क्या करते हैं इस रीजन पे थोड़ा सा स्वेल अप करते हैं, फूल जाते हैं और ये जब फूल करके बड़े हो जाते हैं तो ये बड़े हो जाते हैं ऐसे और ये रीजन भी स्वेल अप होकर बड़े हो जाते हैं। बहुत अच्छी कंडीशन है, ऐसा होना चाहिए। इससे क्या होगा कि ये जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है इसको इसके रास्ते बाहर जाने का पाथ नहीं मिलेगा, ये बंद रहेगा। तो इधर से जब बंद रहेगा तो प्रेशर बाहर साइड से क्रिएट नहीं होगा, तो इसके ऊपर कोई जर्क नहीं होगा, ये डेवलपमेंट पॉइंट पे बना रहेगा, ये बॉडी रीजन पे बनेगा, यहाँ बने, यहाँ बने, यहाँ बने, बनेगा बॉडी रीजन पे। बॉडी किसको बोलते हैं आपको तो पता ही होगा, इसमें सर्विक्स, फंडस एंड बॉडी बोलते हैं। तो सर्विक्स, फंडस एंड बॉडी, तो ये सर्विक्स हो गया, ये फंडस हो गया और ये बॉडी हो गया। तो बॉडी रीजन, मिडिल रीजन को बॉडी कहते हैं। तो मिडिल रीजन पे डेवलपमेंट होगा। तो देखो हर टर्म आपने सीख लिया। ये फैलोपियन ट्यूब है, अब तक आप सीख चुके हो कि यहाँ जायगोट के बाद ग्रोइंग स्टेज में आएंगे। जब ये आस्थमस से ग्रोइंग स्टेज में आगे आता है उसी समय क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है। दैट मीन्स व्हेन द जायगोटिक पार्ट इन द डेवलपिंग फॉर्म ऑफ द ब्लास्टुला they have to gradually passes through isthmus, क्योंकि इसको isthmus बोलते हैं, isthmus to uterine region in that call the cleavage formation start and cleavage formation होने लगेंगे एंड अलग अलग तरह के क्लीवेज साइकिल इसको इम्प्लांट करने में हेल्प करेंगे और ह्यूमन बीइंग के जो होंगे वो आपको बताऊंगा क्लीवेज के टाइम पे। फिर कैविटी ऑफ यूट्रस ये बनेंगे, अम्बिलिकल कॉर्ड,
मेन पार्ट हो गया यूट्रस फैलोपियन सॉरी प्लेसेंटा का। फिर प्लग ऑफ म्यूकस इन सर्विक्स आपने समझ लिया, इसमें आर्बोरबाइटी सर्विक्स होता है। एमनियोटिक मेम्ब्रेन क्लियर हो गया, एमनियोटिक फ्लूइड एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज, इस समय इसका नाम फीटस दिया जाएगा डेवलपिंग फॉर्म में। और ये यॉर्क सैक और प्लेसेंटा का टर्म, दैट मीन्स दिस इज द पार्टिसिपेशन ऑफ द इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो आफ्टर गैस्ट्रुलेशन। तो आपने देखा कि जिस तरह से डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट में मोर्ला बनता है, ब्लास्टुला बनता है, गैस्ट्रुला बनता है, तो आपने हर चीज़ को क्लियरली देख लिया। अब आपके ऑब्जेक्टिव में कितना भी क्रिटिकल क्वेश्चन बने, इससे बाहर नहीं बनेगा। एंड अगर आपने इनके हर टर्म को सीख लिया तो आप इससे क्वेश्चन एनालाइज कैसा भी हो आप आंसर दे सकते हो। हाँ, इसके टर्म में आपको अब क्लियर करूंगा कि किस तरह से एमनियन और कोरियन प्लेसेंटा फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दो टर्म मैंने और लिया था, यॉर्क सैक एंड एलेंटॉइस, वो भी जो है प्लेसेंटा फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो एमनियन, कोरियन, यॉर्क सैक एंड एलेंटॉइस, विच इज द फंक्शन एंड उसके पार्टिसिपेशन क्या है, क्या क्या रोल प्ले कर रहे हैं, प्लेसेंटा के कौन से पार्ट को बना रहे हैं और प्लेसेंटा क्या है। बट गैस्ट्रुलेशन के बाद ही बनेगा ये, हाँ, लेकिन स्टार्ट हो जाएगा गैस्ट्रुलेशन में। फिर ये 90 डिग्री में घूमते हैं, कैसे घूमते हैं, क्या होता है, किस तरह से बच्चे का डेवलपमेंट होता है, वो अगला स्टेप है। बट अभी आप गैस्ट्रुलेशन इसमें देख लिए और गैस्ट्रुलेशन के बाद इम्प्लांटेशन आपने देख लिया। अब आप देखोगे कि प्लेसेंटा फॉर्मेशन कैसे होता है। ओके स्टूडेंट, नाउ एक्सप्लेन प्लेसेंटा फॉर्मेशन। प्लेसेंटा फॉर्मेशन, अब प्लेसेंटा का फॉर्मेशन में कौन कौन क्या क्या पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपने गैस्ट्रुला देख लिया, आपने इम्प्लांटेशन देख लिया, एंड नाउ प्लेसेंटल फॉर्मेशन। प्लेसेंटल फॉर्मेशन में जैसे आपने नाम लिया है यहाँ पर मैंने एमनियन, दैट फर्स्ट एमनियन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चार टर्म और इसके जो भी पॉइंट्स है। आपने देखा एमनियन इस डायग्राम में, एमनियन प्रेजेंट अपर पार्ट ऑफ एमनियोटिक मेम्ब्रेन, जो आप देख रहे हो बस वैसा लिखो। शो एमनियन प्रेजेंट अपर पार्ट ऑफ एमनियोटिक मेम्ब्रेन। देखो बच्चों, ये तो बन चुका है गैस्ट्रुला में, तो कुछ तो गैस्ट्रुला बन जाएगा और क्या गैस्ट्रुला के आगे डेवलपमेंट में बनेगा और दोनों के टाइम पे फिर प्लेसेंटा बनेंगे। सो प्रेजेंट अपर पार्ट ऑफ एमनियोटिक मेम्ब्रेन, इट कॉल्ड द एमनियन। क्लियर? अब ये करेगा क्या, तो इट मेन फंक्शन क्या है। तो बच्चों ये फंक्शन ही आपको याद रखना है और इससे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनेंगे। इसका फंक्शन है, इट फॉर्म द अम्बिलिकल कॉर्ड इन प्लेसेंटा। आपको बताया था प्लेसेंटा के मिडिल पॉइंट में, जैसे कि मैं ड्रॉ कर रहा हूँ और क्लियर कर लो। जैसे ये अपर पार्ट हो गया और आपको मैंने कहा कि अपर पार्ट जो है वो प्लेसेंटल मेम्ब्रेन है, प्लेसेंटल मेम्ब्रेन, तो ये प्लेसेंटल मेम्ब्रेन हो गया। और इसके मिड पॉइंट में यहाँ पर ये जो मिड पॉइंट आप देख रहे हो, इस मिड पॉइंट में प्रेजेंट एट कॉर्ड, दैट नेम इज अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड। And you know, umbilical cord and placental membrane combinedly called the placenta, इसी को प्लेसेंटा बोलते हैं। ये प्लेसेंटा को फॉर्म कर रहा है, तो इसका मेन फंक्शन है अम्बिलिकल कॉर्ड फॉर्मेशन। सो मेन फंक्शन ऑफ द एमनियन इज फॉर्मेशन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड इन प्लेसेंटा। प्लेसेंटा में अम्बिलिकल कॉर्ड को बनाना इसका मेन काम है। सेकंड, कोरियन। बच्चों आपने देखा कि ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कोरियन एंड कोरियन प्रेजेंट इन अपर पार्ट ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट, क्योंकि ट्रोफोब्लास्ट इस समय क्या हो चुके हैं, सॉलिड हो चुके हैं। अब तक जो ट्रोफोब्लास्ट जो फ्लैट फॉर्म में थे, दैट कन्वर्ट इनटू सॉलिड स्ट्रक्चर, इट कॉल्ड कोरियन। तो जैसा देख रहे हो वैसा लिखो, कोरियन, कोरियन present on the upper surface of trophoblast. In that time trophoblast is solid, so solid trophoblast when form the chorion, in that time trophoblast have to solid, so chorion बन चुके हैं। इसका क्या फंक्शन है,
तो इसका फंक्शन है इट फॉर्म प्लेसेंटल मेम्ब्रेन, ये प्लेसेंटा के मेम्ब्रेन को बनाएगा। सो कोरियन फॉर्म्स प्लेसेंटल मेम्ब्रेन, ये प्लेसेंटल मेम्ब्रेन को फॉर्म करेगा। क्लियर? देखो ये फंक्शन को याद रखना, भूलना नहीं, क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड कौन बना रहा है, तो एम्नियन, ये याद रखना है। कोरियन क्या बना रहा है, प्लेसेंटल मेम्ब्रेन। इस तरह के पॉइंट्स ही नीट में ऑब्जेक्टिव में आते हैं। थर्ड यॉर्क सैक, अभी अभी आपने देखा कि यॉर्क सैक जो है ये बन चुके हैं इस डायग्राम में। यॉर्क सैक यहाँ पर प्रेजेंट है और यॉर्क सैक इज नेचुरली प्रेजेंट इन ह्यूमन embryonic development time and they provide the nutrition to embryonic development or placental formation. So they provide nutrition to embryonic development and placental formation. एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में और प्लेसेंटल फॉर्मेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को ये देगा यॉर्क सैक। एंड यॉर्क सैक फॉर्म विद द हेल्प ऑफ मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, ये दोनों के द्वारा ये सपोर्ट करके बनेंगे। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इसको सपोर्ट करेगा, एंडोडर्म सपोर्ट करेगा, यॉर्क सैक बन जाएंगे। तो ये बन जाएंगे और ये न्यूट्रिशन देने में सपोर्ट करेगा। फोर्थ, जो आपको डायग्रामेटिकली दोनों में कहीं नहीं दिख रहा है बट वो है इसके अंदर, जैसे मास शेल होते हैं, टोटिपोटेंसी, प्लेरोपोटेंसी, पावर हैव टू प्रेजेंट इन सेम लाइक वन स्ट्रक्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट नेम इज एलेंटॉयज। एलेंटॉयज इसके अंदर ही है, जेनेटिकली एक्टिवेट है। एलेंटॉयज फॉर्म द ब्लड कैपिलरी इनसाइड अम्बिलिकल कॉर्ड। जैसे ये अम्बिलिकल कॉर्ड है तो इसमें ब्लड कैपिलरी को फॉर्म करेगा, ब्लड ट्यूब एंड ब्लड कैपिलरी दोनों को फॉर्म करेगा। तो ये ब्लड ट्यूब एंड ब्लड कैपिलरी फॉर्म इनसाइड अम्बिलिकल कॉर्ड विद द हेल्प ऑफ एलेंटॉयज। एलेंटॉयज का मेन फंक्शन होगा इट फॉर्म ब्लड ट्यूब। देखो जो मेन ट्यूब है उसको ब्लड ट्यूब बोलते हैं और उससे जो पतले पतले फाइबर लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं वो कैपिलरी होता है। इट फॉर्म मेन ब्लड ट्यूब एंड ब्लड कैपिलरी inside umbilical cord. So inside umbilical cord form this type of a structure, and most important, when the maternal nutrition is entered through maternal part to the embryonic part through this umbilical cord, and in that time the allantois, or you say that the blood capillary also help. So the nutrient particles enter from this side to that side and growing embryo receive nutrition and directly from mother blood. When mother take any type of the food, then food converted into the simple form and simple form mixing with blood, and this blood directly entered through this part to embryonic part and embryo have to develop. But when embryo reach 5 months, in the time the fecal matter and urine also release, and in that time they not release in that region. ये release यहाँ नहीं करेगा, मत सोचना कि फीकल मैटर यहाँ पर आ जाएगा, नहीं। फीकल मैटर नॉट रिलीज इन दैट रीजन, यहाँ पर कहीं भी फीकल मैटर रिलीज नहीं होगा, फीकल मैटर रिलीज इन दैट रीजन, इट्स अम्बिलिकल कॉर्ड। सो ये जो बच्चा जो डेवलप हो रहा है, फीकल मैटर यानी यूरिन एंड फीकल मैटर बोथ रिलीज इन दैट रीजन एंड दैट हेड पासेस फ्रॉम दिस रीजन टू मदर बॉडी एंड मदर ब्लड से होता हुआ उनके एक्सक्रीटरी पार्ट एंड उनके फीकल पॉइंट से आउट हो जाएंगे। सो ये जो होते हैं एक यूनिक फीचर है, और इस बच्चे का डेवलपमेंट में किस तरह से इनके बॉडी, इनके ऑर्गन, इनके पूरा स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ये साइंटिस्ट आज भी डिटेक्ट कर रहे हैं कि कैसे ऐसा हो रहा है। पूरे साइंटिस्ट के ग्रुप को भी आज तक ये नहीं पता कि ये बच्चा एक्चुअली बन कैसे रहा है। अदरवाइज कोई बच्चा, अगर कोई किसी को पता हो कि ऐसा बनता है, तो मान लो कोई बहुत ब्रिलियंट ब्रेन है, वो कैसे बन रहा है अगर पता लग गया, तो हर माँ बाप ये चाहेगा कि मेरा बच्चा भी ब्रिलियंट ब्रेन ही बने। या कोई बहुत अच्छा क्रिकेटर है, धोनी है, सचिन है, इसके जैसा बनना चाहता है, कैसे बनता है, अगर वो बच्चा कैसे बनता है ये पता लग जाए तो वो टेक्निक यूज करके वैसे बच्चा बना दे। बट आज तक किसी को ये पता नहीं चला है कि वो बनता कैसे यूनिक। अगर मान लो कि ऊपर वाला कुछ है तो अगर वो बनाता है किसी बच्चे को और वो सांचा टूट जाता है, फिर वो अगले के लिए नहीं बनता है, वो फिर अलग ही बनता है। एक ही माता पिता के दो बच्चे बनते हैं तो दोनों एक जैसे नहीं होते हैं। दोनों अगर भाई बना, दोनों बहन बने, एक भाई एक बहन बना, तो भी इनके ब्रेन स्ट्रक्चर, इनके ब्रेन के वर्क पावर, इनके सोचने का ढंग सब अलग होगा।
सब एक जैसा नहीं होगा। दैट मीन्स एक ही जेनेटिक मैटर से बनने वाले चाइल्ड में डिफ्रेंसिएशन क्रिएट हो रहा है। एक ही माता पिता के स्पर्म ओवम जो फर्टिलाइज हो रहे हैं, जब उनसे बच्चे बन रहे हैं तो उनमें कुछ डिफ्रेंसिएशन क्रिएट हो रहा है। तो इन सबका एटमॉस्फेरिक, इन सबका डेवलपमेंट प्रोसेस, इन सबका ओरिजिन पॉइंट, सब में कुछ ना कुछ डिफ्रेंसिएशन हो रहा है। ये डिफ्रेंसिएशन को आज तक किसी साइंटिस्ट ने ढूंढ नहीं पाया कि क्यों हो रहा है, व्हाई। एक ही माता पिता के बच्चे बन रहे हैं तो हर बच्चे तो एक जैसा होना चाहिए, जेनेटिक मैटर तो एक जैसा है, बट नॉट सेम टाइप। तो बच्चों इस क्लास में आपने देखा कि किस तरह से गैस्ट्रुला बन रहे हैं, एंड गैस्ट्रुला स्ट्रक्चर यही है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द गैस्ट्रुला, एंड 64 ब्लास्टोमेर स्टेज हैव टू फॉर्म इन दैट टाइम, एंड आफ्टर दैट amnion, chorion, yolk sac, allantois, this is the structural part have to form, and after gastrulation stage the embryonic stage have to start, and in that time centriole have to participate to cell division, not the karyoplasmic index. Centriole control the cell division of the mitosis, and embryonic development have to continue, and gradually embryo have to develop, and in that time the placenta form, and placenta को यही बनाएगा amnion, chorion, yolk sac and allantois. नेक्स्ट पार्ट में आप देखोगे कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है और ये किस तरह से नेक्स्ट स्टेप में कौन कौन से स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहे हैं, ये अगले क्लास में। ओके।